Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we will take a look at a practice passage from the genre of political sciences. In CAT exam, political sciences based RC passages often found at least in one or two of the three sections, along with biology, biotech, natural science based passages. Political science based also are a sort of mainstay. At least this has been the trend for the past 2 3 years. So based on that, I've made this video. Found this really good RC passage. I would recommend that you go through this RC passage. In the description box, I have also put in the timestamps for the respective questions that are going to appear. You can simply click on those timestamps, follow the solve the questions on your end, and then of course you can play the video and look at the solution. Okay. So all right, let's start with the explanation. What does it say? Author starts off by saying, before that, let's take a broad look at the structure. For the first three paragraphs till here, author is dishing out his opinion. Okay. Then suddenly for the fourth, fifth, and sixth paragraph, he is giving us opinion of three, four other famous guys, Grotius, Hobbes. Then we have Emperor Caligula also coming in, and then also a mention of Aristotle towards the closing lines of this penultimate para. And then once again, in the last paragraph, author is switching back to his opinion again. ठीक है? So ऐसे केस में, knowing that the author has dished out a lot of different guys' opinion and also merged his own here and there with those, it is a good idea to jot down your points in as structured and as clear a manner as possible. तो ठीक है, फर्स्ट थ्री पैराग्राफ में जो बात की है, यू डिड नॉट जॉट इट डाउन, द नैरेटिव इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑथर सेज कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी को आप देखो, स्टडी करो, तो सबसे पुराना, सबसे फंडामेंटल और रादर सबसे नेचुरल है फैमिली की. Because in family, genuinely, the children need the father for, of course, care, protection, growing up and becoming independent humans. And of course, कुछ सालों बाद में जब बच्चे बड़े होकर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो they can always choose to break away from the family and pursue your own independent life. And on the other hand, the father also gets relief from the pressures, from the responsibility of bringing up the children, and he can also return equally to his independence. So here the author is giving out his take on the structure of family. कि देखो, कुछ सालों के लिए बंधन होता है सभी के अच्छों के लिए, बट आफ्टर अ सर्टन स्टेज ऑफ टाइम वो बंधन डिसॉल्व किए जा सकते हैं. द चिल्ड्रन आफ्टर बिकमिंग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग्स चार्ट देयर ओन पाथ, एंड द फैमिली में द फादर, मदर का एक्चुअली मेंशन नहीं है, बट सरप्राइज, बट टॉकिंग अबाउट द फादर, द केयर टेकर, द गाय हिमसेल्फ कैन ऑल्सो रिटर्न टू हिज ओन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ. ठीक है. अब अगर इस स्टेज के आगे फिर भी हम देखते हैं यार फैमिली तो मेंटेन है, चिल्ड्रन ग्रोन अप, कैन मेंटेन देमसेल्व्स बट स्टिल लिविंग विद देयर फैमिली, द फादर इज आल्सो लिविंग विद द चिल्ड्रन. व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ मैन. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कन्वेंशन, ट्रेडिशंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर कि भैया बायोलॉजिकल नेचुरल नीड नहीं है फिर भी साथ में है. So that is why author goes on to say that I would like to call family as the first model of political society. In this case, where the rural resembles the father and the people the children. क्योंकि ऑफ कोर्स फादर रूलर सॉर्ट ऑफ, कि उनके अपने पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी वो डिसीजंस लेंगे, जो भी पावर एक्सर्ट करेंगे, किसके ऊपर होता है? चिल्ड्रन के ऊपर. इन अ किंगडम, इन अ सोसाइटी दैट रिजेंबल्स द जनता, प्रजा. ओके. So in this case, for the first three paragraphs, author has painted an analogy between structure of a society and the fundamental structure of a family, where according to author, let's plot it down. What is happening? Father is not the ruler exactly, analogous to ruler. ठीक है जी. And the children analogous to the public, the ruled, जिनको बोलेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट, फिर आता है मिस्टर ग्रोटियस की एंट्री की है ऑथर ने इन द फोर्थ पैराग्राफ, ऑल्सो टेक्स इट फॉरवर्ड इन द फिफ्थ वन. फोर्थ पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, पे अटेंशन प्लीज. व्हाट डज द ऑथर से हियर? कि कुछ लोगों का बोलना है, कुछ लोगों का क्या बोलना है, कि जो भी हमारे सोसाइटी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, इट इज इन फेवर ऑफ होम? इट इज इन फेवर ऑफ द गवर्नड, मतलब कि इट इज इन द फेवर ऑफ द पब्लिक. ठीक है. जनता के फेवर में पूरे ह्यूमन पावर का कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ लोगों का बोलना है. एंड ग्रोटियस से ऐसा नहीं है.
denies this. Okay, so what does he say? As an example, as a rebuttal to this opinion held by some people, he says slavery देखो, वहां पे क्या पावर है गवर्नमेंट के हाथ में? स्लेवरी ऑफ कोर्स गुलामी में जो इंसान गुलाम होता है उसके हाथ में क्या ताकत है? ओके, कुछ भी नहीं है. द एंटायर structure, the entire institution of slavery is completely biased, is completely in favor of whom? The governor, the ruler, not in favor of the governed. ठीक है, तो ऑथर से इस ग्रोटियस का काफी एग्रेसिव टेक्निक है टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ वॉट एवर इज सेइंग. इट इज गुड, इट इज पॉसिबल टू हैव फार बेटर मेथड्स इन प्लेस टू ट्राई टू प्रूव व्हाट ही इज ट्राइंग, बट चलता है, ग्रोटियस का मेथड भी ओके है. एंड एक्चुअली इट इज इन फेवर ऑफ टायरेंट्स, इन फेवर ऑफ द रूलर. वो प्रूफ करके दिखाता है कि रूलर के हाथ में कितनी ताकत है. ठीक है, फिर इसके बाद में ग्रोटियस टेक्स द डिस्कशन फॉरवर्ड. ग्रोटियस सेज कि अब ह्यूमन सोसाइटी को समझे तो कैसा समझे? इज इट 100 men लिविंग देयर लाइफ, या फिर बिलोंगिंग टू ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन रेस, पूरी इंसानियत, या फिर पूरी की पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमन रेस, द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 100 men? मतलब कि 100 लोग, 100 बंदे, 100 रूलर्स, क्या ये ह्यूमन रेस के अच्छे के लिए है? क्या ये उनके सेवा के लिए है? या फिर entire humanity is for the service of these 100 guys? So exact two opposite thought processes. And what is happening? Author says Grotius का inclination कहाँ है? Grotius कहता है he inclines to the formal alternative, meaning that what? That the human race belongs to 100 men, meaning that this 100 men are dictators, tyrants, powerful guys, sort of owning entire humanity in their own hands. And author says this is also the opinion of Hobbes. Okay, so let's plot it down. What are Mr. Grotius and Hobbes saying? Pardon my handwriting, please. Okay, what are these guys saying? That, and also yes, these guys are have portrayed an analogy. What are they saying? कि इस थॉट प्रोसेस से सोचो ना, तो ह्यूमन स्पीसीज कैटल है भाई, कैटल. ओके, कितना डेरोगेटरी टर्म है. आप देखो कि भेड़ बकरे जानवरों को कंपेयर कर दिया है इंसानों को उनके साथ में. एंड जो उस कैटल का होता है ना, हर्ड करने वाला, जो रखवाला, हिंदी में जिसको हम ग्वाला कहते हैं, वो रूलर है. और वो क्यों ही ध्यान दे रहा है उन कैटल के ऊपर में? क्योंकि आज नहीं कल उनको डिवोर करना है. डिवोर मीन टू हंट, किल, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. नाउ इफ यू थिंक of this analogy from a purely Indian or from a purely Hindu point of view, this will feel quite uncomfortable, because here in India we do not rear cattle for the purpose of devouring them. Okay, cattle have been allotted a fairly good, important, even holy place in our social structure. इसको थोड़ा सा वेस्टर्न एनालॉजी, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही देखो इस बात को, कि आम इंसान को कैटल बोल दिया, विच इज अ वेरी डेरोगेटरी टर्म. एंड रूलर इन द सेंस जो उनका गार्ड है, जो आज नहीं कल उनको खत्म करने वाला है फॉर हिज पर्सनल गेन, पर्सनल बेनिफिट. सो व्हाट डज दिस गाइस पोर्ट्रेड द सिचुएशन एज? दैट द रूलर इज व्हाट? रूलर इज अ सॉर्ट ऑफ गार्ड या फिर डिवोरर, एंड द पब्लिक इज व्हाट? इट्स नथिंग बट कैटल. वेरी डेरोगेटरी टर्म, बट ठीक है, मे बी ट्रू. ठीक है. देन टेकिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे दो बंदों की एंट्री हो गई है. एक है कैलिग्युला, सो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. ओके, एम्परर कैलिग्युला भी इनके ही लाइन का है. ये क्या कहता है कि गोइंग बाय दिस फिलोसॉफी ऑफ पीपल बीइंग एनिमल्स एंड देयर रूलर्स बीइंग सुपीरियर टू देम, तो फिर इसका मतलब दो में से एक ही पॉसिबल है, कि इंसान इंसान है बट उनके जो किंग्स है वो गॉड्स है, या फिर अगर किंग्स नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है तो उनकी जनता, उनकी प्रजा जानवर है, बीस्ट्स है. तो व्हाट इज कैलिग्युला सेइंग? लेट्स प्लॉट इट डाउन. कैलिग्युला इज सेइंग दिस, वन ऑफ द टू सिचुएशंस, कि रूलर इज गॉड एंड पब्लिक इज ह्यूमन, और इफ द रूलर इज ह्यूमन then the public is animal. ठीक है, all right. So I would recommend that at this stage you pause this video. जिस तरीके से हमने ये स्क्रीन पर जॉट डाउन किया है नोट्स को,
तुरंत आप ये कर लो, बिकॉज अब थोड़ा सा हेवी ड्यूटी लिफ्टिंग आने वाला है। एरिस्टोटल रिलेटेड जो ओपिनियन ऑथर ने दिया है, आई एम गोइंग टू इरेज वॉट एवर इज रिटन ऑन द स्क्रीन। आई रिकमेंड वंस अगेन दैट यू जॉट इट डाउन फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा एरिस्टोटल का पार्ट जो लिखा है वो पढ़ो। व्हाट इज एरिस्टोटल सेइंग और व्हाट डज द ऑथर से रिगार्डिंग एरिस्टोटल? क्लोजिंग रिमार्क्स ऑफ द पेनल्टीमेट पैराग्राफ प्लीज। व्हाट डज ही से देयर? ही इज सेइंग कि एरिस्टोटल ने भी यही बात बोली थी। ये सब कैलिगुला, हॉब्स, ये बंदों के सबसे पहले एरिस्टोटल ने खुद नहीं बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। सॉरी, देयर आर सम पीपल हु आर डेफिनेटली सुपीरियर, एंड देन देयर आर अदर्स हु आर ऑलवेज गोइंग टू बी inferior, always going to be dominated. Some are born for slavery and there are others who are born for dominion, for ruling. और फिर ऑथर ने बहुत बड़ी गुगली डाली है यहाँ पे। ही सेइंग एरिस्टोटल सही है इन द सेंस दैट यस, पीपल आर नॉट इक्वल, ओके, एवरीबडी इज नॉट इक्वल, बट, और ये स्टेटमेंट है हेवी, ही टुक द इफेक्ट फॉर द कॉज। ये समझना जरूरी है बहुत क्लैरिटी से, क्योंकि दो क्वेश्चन इसके ऊपर दे दिए। तो लेट मी प्लॉट डाउन व्हाट द ऑथर इज सेइंग। एक बहुत पावरफुल तरीका है बोलने का, लॉजिक को बीट करने का, बाय सेइंग टेकिंग इफेक्ट फॉर कॉज। मीनिंग क्या होता है इसका मैं बताता हूँ। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि लेट्स से देयर इज अ गाय मिस्टर एक्स, ओके। तो एरिस्टोटल क्या कह रहा है कि कुदरत ने ना पहले से फिक्स कर दिया कि एक्स इज मेंट फॉर स्लेवरी। ये ना गुलामी के लिए ही बना रहे हैं हम इसको, कुदरत, भगवान, जो भी बोलना है। तो इसलिए मिस्टर एक्स इज बॉर्न एज अ स्लेव। ठीक है, दिस इज एरिस्टोटल का थॉट प्रोसेस, बट ऑथर डिफर्स, डिफर्स फ्रॉम हमारा, क्या बोलेंगे ना इस बंदे से। ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर सेज ऐसा, ऑथर सेज एरिस्टोटल ने क्या किया, ही मिसअंडरस्टूड द रिजल्ट एज द कॉज, ओके, ही मिस्टूक द इफेक्ट फॉर द कॉज। मतलब कि ये रिजल्ट होना चाहिए और ये कॉज होना चाहिए, इस बंदे ने उल्टा कर दिया, इसको कॉज बोल दिया, इसको रिजल्ट बोल दिया। तो व्हाट इफेक्टिवली ऑथर वांट्स टू से इज कि क्रोनोलॉजी उल्टा करो। ऐसा नहीं होता है, एरिस्टोटल ने जो बोला वो क्रोनोलॉजी बिगड़ चुकी है उसके हाथ से। तो हाउ डू वी करेक्ट द एनालॉजी, हाउ डू वी ट्राई टू प्लॉट हाउ व्हाट द ऑथर इज सेइंग? ऑथर इज सेइंग दिस कि एक्स इज बॉर्न अ स्लेव, बेचारा पैदा हो गया एज अ स्लेव, मे बी टू स्लेव पेरेंट्स, देयरफॉर ही विल स्टे अ स्लेव। मतलब कि देयरफॉर ही इज मेंट फॉर स्लेव। क्योंकि आखिरी पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस है वो आप पढ़ो, वहां पे लिखा है कि slaves lose everything, they lose the desire to even escape from slavery, they end up loving their servitude। तो इसका मतलब that yes, he is meant for slavery। तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से जो एरिस्टोटल ने लिंकेज प्रूफ किया है, this first this later, author is trying to turn it on it। that is why author has written this opinion कि नहीं यार, एरिस्टोटल he took the effect for the cause। मतलब ऑथर के हिसाब से जो कॉज है वो एरिस्टोटल के हिसाब से इफेक्ट है। तो हैव वी प्लॉटेड इट करेक्टली? यस, ऑथर के हिसाब से जो कॉज है वो एरिस्टोटल के हिसाब से इफेक्ट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉजल लिंक, ओके। in our class we generally often discuss this a lot, I have discussed causal correlation a lot of times। uh, this is I am trying to reinforce this once again। एरिस्टोटल ने जो कॉजल लिंक बिल्ड किया है, ऑथर इज सेइंग इसका कॉजल लिंक गलत है। ठीक है, एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू प्लॉट दिस एंटायर नरेशन डाउन, क्योंकि दो क्वेश्चन इसके ऊपर आने। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है पैसेज का, वेरी रिमार्केबल, द लैंग्वेज ऑल्सो यूज्ड इज वेरी गुड। एक्चुअली आई लव दिस आरसी पैसेज अ लॉट, एंड व्हाई सो? फॉर मल्टीपल रीजंस। द क्वेश्चंस आर गुड, द कंटेंट ऑफ द पैसेज इज ऑल्सो गुड, the narrative given in the passage is also such that you don't need a lot of background information to understand what is given। no heavy words used anywhere कि vocabulary की वजह से आपका काम बिगड़ गया यार, ये क्या गलत बात है, ऐसा भी नहीं हुआ है। एंड द नैरेटिव्स जो भी बात की है ना, वो उसका हेड एंड टेल पूरा पैक किया है ठीक से 500 वर्ड्स। Otherwise a lot of time you see that some RC passages don't seem to have a good start, a good head,
ऐसा लगता है कि उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रही थी, पैसेज बनाने वाले ने वो पहले का पार्ट उड़ा दिया और बीच का कुछ पार्ट हमें पकड़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी ऑफन फील, यार ये तो ना मजा ही नहीं आ रहा, क्या लिख दिया ये बात। बट हियर इट इज नॉट really amazingly made RC passage. ठीक है, so I hope that you have plotted down the two pieces of information जो स्क्रीन पे हमने लिखा था. Refer to those when we now attempt the questions. पहला क्वेश्चन, to be honest and straight up with you, ये कैट एग्जाम में नहीं आता है, इन द सेंस पिछले कुछ सालों से ये बंद कर दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैटेगरी बहुत सब्जेक्टिव है. इसमें 100% लॉजिक से हम प्रूव नहीं कर सकते सही आंसर को बहुत सी बार. लाइक दिस क्वेश्चन इज अ गुड एग्जाम्पल. But nonetheless, there is nowhere written in stone कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं. So just for the purpose of exposure, I have taken this question. And this question is a bit problematic. Why? ऑप्शन एलिमिनेशन से कोशिश करते हैं. क्वेश्चन पूछता है कि इसका सोर्स क्या है आरसी पास. ठीक है, तो वन बाय वन. एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ थीसिस. थीसिस मतलब आप अगर बहुत बड़ा कुछ रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह, रिसर्च पेपर पब्लिश जब करते हो ना, उसके शुरुआत में 1 और 2 पेज का एब्स्ट्रैक्ट होता है, वेर यू आउटलाइन एवरीथिंग और ट्राई टू टच अपॉन द मैक्रो पॉइंट्स जो अंदर आपके उस रिसर्च में लिखे हुए हैं, आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, योर एब्स्ट्रैक्ट माइट रीड समथिंग लाइक दिस कि वी आर डिस्कसिंग टॉपिक एक्स by experimenting or by trying to apply methods A, B, C, and cumulatively हमें जो results मिले हैं they are LMNOP वगैरह वगैरह. तो ये वन सिंगल सेंटेंस इसमें कंडेंस करके शॉर्ट में पूरा नैरेटिव दे देता है एब्स्ट्रैक्ट. अब डिटेल में अगर आपको देखना है कि एक्सपेरिमेंट ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, तो उसके लिए फिर आप पूरा वो हाइपोथेसिस पढ़ सकते हो. ठीक है, तो अलॉट ऑफ टाइम्स जो आपके बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स है, पूरा पढ़ने का तो टाइम होता नहीं है, तो उनका एब्स्ट्रैक्ट देखकर जजमेंट लगाया जाता है कि हाउ डीप, हाउ मेरिटोरियस दे आर. So actually this RC passage, if you see, it is not giving you a glimpse of something. The entire narration, the entire discussion is within the passage itself. Nowhere is the passage giving you any kind of hint or clue by saying कि अंदर जो आगे जो मैं लिख रहा हूँ वहां पे पढ़ लेना डिटेल में, चलो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. नो, ऑथर ने, आप देख सकते हो, बहुत प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड लिखा है सब कुछ. पहले 3 पैराग्राफ्स में और आखिरी पैराग्राफ में खुद का ओपिनियन, बीच के 3 पैराग्राफ्स में दूसरे 3-4 बंदों का ओपिनियन. सो एवरीथिंग इज राइट हियर. यू डोंट नीड टू गो थ्रू सम other comprehensive material to understand the narrative here. So because of that, it cannot be the abstract of a thesis. For the same logic, option C भी नहीं हो सकता, editorial in a periodical. Periodical might be, let us say, a magazine which comes once a week or maybe once a month, whatever. तो editorial ऐसे periodicals में इतने short नहीं होते. This is what approximately 450, 100, 500 words. ठीक है, editorials are very comprehensive और उनका जो language tone tenor होता है थोड़ा different रहता है. ठीक है, so I know I am trying to sell you some kind of explanation here. ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, and you are meant to accept my explanation on face value, and that is why I said the question is really very subjective. But हाँ, सोचने का थॉट प्रोसेस काफी हद तक ऐसा ही होता है. ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन बी और डी पे. ये बहुत बड़ी दुविधा वाले ऑप्शन है, बिकॉज बोथ ऑफ देम से ऑन अ टॉपिक विच इज राइट. डिफरेंस बस वन सिंगल वर्ड का है, ट्रीटीज. ऐसे ट्रीटीज मतलब व्हेन यू राइट a detailed report or when you write some deep material na, on something which is very formal, very important. For example, you might write a treatise on socio-economic conditions in a society. You might write a treatise on democracy in a society. ठीक है, आप ट्रिटाइज ना लेम चीजों को लेकर नहीं लिखते कि ट्रिटाइज ऑन लोग गाड़ी कैसी चला रहे हैं सोसाइटी में, या लोग गाड़ियां कौन सी खरीद रहे हैं सोसाइटी में. नो, उस पर ट्रिटाइज नहीं होता. ट्रिटाइज इज ऑन समथिंग वेरी फॉर्मल, वेरी डीप, इवन थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच वाले टॉपिक्स. ठीक है, ऐसे ऑन अ टॉपिक कैन बी फॉर्मल, कैन बी इनफॉर्मल. ठीक है, एंड ऑल्सो ऐसे में ना आपको बहुत हैवी लैंग्वेज नहीं मिलेगा जनरली. हैवी लैंग्वेज जनरली नहीं होता, थोड़ा सा लाइट वेट रहता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थोड़ा सा पर्सनल इंक्लिनेशन मेरा बी के तरफ जा चुका है. ऑफिशियल आंसर ऑल्सो स्टेज बी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ यू गाइस, बी एंड डी बहुत बहुत क्लोज है. If you have gone ahead and marked D as the answer, and if you were confused
व्हाट ऑप्शन बी मीन्स और यू वर टाइड बिटवीन बी एंड डी, तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम सही चल रहा है। आइडियली स्पीकिंग क्वेश्चंस लाइक दिस गलती से एग्जाम में या मॉक्स में आते हैं, दे आर मेंट टू बी स्किप्ड, ठीक है, बिकॉज यू रियली कैन नॉट ब्रेक डाउन a solid differentiating line between a treatise and an essay as far as this passage is concerned, ठीक है। इट कैन वेरी वेल बी कंसिडर्ड एन essay also, कि भाई 1000 वर्ड्स का शायद एक ऐसे था, उसका 500 पार्ट्स का फर्स्ट हाफ उठाकर दे दिया गया पैसेज, पॉसिबल है, ठीक है। सो whoever made the question, whoever declared option B as the right answer, थोड़ा सब्जेक्टिविटी से आपको वो बेच रहा है वो ऑप्शन को, ठीक है, यू डिड नॉट टेक इट टू हार्ट। अगर आपका सही हो गया है खुशी की बात है, नहीं भी हुआ है तो दुखी ना हो, ठीक है। तो चलो अब जाते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, ज्यादा काम के और जो ज्यादा अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको टैकल करते हैं। लेट्स नॉट बी बॉदर्ड बाय दिस, ठीक है। जो हमने प्लॉटिंग की थी डेटा की, अब बहुत काम में आएगी। व्हाट डज इट से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट करस्पॉन्डेंस, रिस्पेक्टिवली बंदे जो हमारे रिसर्चर्स है, फिलोसोफर्स है, वो कंपेयर किस एनालॉजी से कर रहे थे पावर वाले लोग। जैसे कि यहाँ पे आपका कैलिग्यूला देखो, किंग्स को गॉड्स बोल रहा था या फिर पब्लिक को बीस्ट बोल रहा है, तो वो पब्लिक को क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है। वी वांट टू टॉक अबाउट कि एनालॉजी में पीपल हु हैव पावर उनको कैसे पोर्ट्रे किया है। तो कैलिग्यूला इज कॉलिंग पीपल इन पावर एज गॉड्स, ग्रोटियस एंड हॉब्स आर कॉलिंग पीपल इन पावर एज जो आपके कैटल के हर्डर्स होते हैं या फिर डिवोरर्स जो आखिरी जाके बन जाएगा बाद में, वैसा। ओके, सो लेट्स एनालाइज वन बाय वन। व्हाट डज ऑप्शन ए से? हॉब्स एंड ग्रोटियस, ठीक है, ये बंदे तो सेम ही बोल रहे हैं। व्हाट आर दे कॉलिंग people in power as? They are calling them as devourers, correct? Yes, devourers बोलो, guard बोलो, but they are not calling people in power as gods. God कौन बोल रहा है? God तो कैलिग्यूला बोल रहा है ना, ठीक है। So because of that reason, option A gets kicked out. चलो ऑप्शन बी, व्हाट डज इट से? कैलिग्यूला रिस्पेक्टिवली गॉड्स, बहुत सही, बहुत अच्छा। बट सेकेंड हाफ में बिगड़ गया ऑप्शन, एरिस्टोटल फादर्स नहीं। फादर वाला एनालॉजी आप देखो, पहले 3 पैराग्राफ में आता है, फादर्स की बात ऑथर ने की। ऑथर सेज कि एक पॉलिटिकल सोसाइटी में रूलर करस्पॉन्ड्स टू द फादर। थर्ड पैराग्राफ में आई एम अंडरलाइनिंग द सेंटेंस फॉर यू दिस वे, ठीक है। इट्स नॉट एरिस्टोटल हु इज सेइंग दिस, इट्स द ऑथर हु इज सेइंग दैट, बिकॉज ऑफ दैट बी आल्सो गोज डाउन द ड्रेन। थर्ड, ऑथर ऑफ द पैसेज, हाँ जी, फादर्स, बहुत बढ़िया, डेफिनेटली। एंड ग्रोटियस, मास्टर्स। यहां पर थोड़ा सा मुझे रेड फ्लैग मिला है। मास्टर्स इन द सेंस, maybe the guy who owns the cattle herd, maybe the guy who will go on to devour them, kill them, वगैरह वगैरह। देखते हैं, ऑप्शन डी अगर बेहतर निकला तो उसे ऑप्शन मार्क कर देंगे। डी, एरिस्टोटल एंड कैलिग्यूला। कैलिग्यूला is not calling people as shepherds, sorry, ruler as shepherds, and anyway Aristotle is also not calling the people in power as the kings। गड़बड़ हो गई, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। कैलिग्यूला दूर दूर तक के शेपर्ड्स वाली बात नहीं कर रहा है। कैलिग्यूला के पहले लिखा है यहाँ पर शेपर्ड्स वाला पार्ट, बट इट इज नॉट ओपिनियन ऑफ कैलिग्यूला। कैलिग्यूला बाद में ही है, ही इज सेइंग दैट किंग्स आर गॉड्स या फिर मेन आर बीस्ट, इज कंक्लूडिंग दैट। ऊपर जो वो शेपर्ड्स वाला पार्ट लिखा है ना, हमारे पेनल्टीमेट पैरा की ओपनिंग सेंटेंसेस, दोज आर ऑथर का एनालॉजी, ठीक है। डोंट कंफ्यूज दैट, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी आल्सो गोज डाउन द ड्रेन। आंसर क्या बना आपका? नेचुरली थर्ड ऑप्शन, इवन दो इट इज नॉट 100% ओके, बट यस, बेटर देन अदर्स। लॉजिक से थोड़ा बोल सकते हैं, दिस आंसर ऑप्शन इज नॉट एज बैड एज द प्रीवियस क्वेश्चन वन। चलते हैं आगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन, मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू, ठीक है। चलो अब जाते हैं हैवी लिफ्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर में, थर्ड एंड फोर्थ, जहाँ पे ऑथर और एरिस्टोटल के झगड़े हो गए थे ना, वो वाले पार्ट के ऊपर है। क्या बोला था ऑथर ने? एरिस्टोटल भैया के हाथ से क्या गलती हो गई? बेसिकली गलती ऐसी है, जो एरिस्टोटल को रिजल्ट लग रहा है वो ऑथर के लिए रिजल्ट नहीं है, ऑथर के लिए वो कॉज है, कारण है किसी और चीज का, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर द फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। प्रेजेंस ऑफ अ फायर ट्रक एट अ फायर साइट इंप्लाइज कि फायर ट्रक की वजह से ही फायर हुआ था। होली शिट, ओके,
हॉरिबल केस ऑफ कॉजेशन कोरिलेशन गॉन रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, हम जानते हैं। अगर फायर ट्रक, फायर ब्रिगेड, फायर एम्बुलेंस अगर आपको कहीं पे दिख रही है जहां पे आग लगी हुई है, यू हैव टू बी रियली स्टूपिड टू से कि उस ट्रक की वजह से आग हो गई। वो तो ट्रक उस आग को फाइट करने के लिए आया है। सो दिस आर्ग्यूमेंट गेट्स इट कंप्लीटली रॉन्ग। what happened first is the fire and then to kill that fire the fire truck comes ना। बट दिस गाय सेइंग नहीं नहीं, फायर ट्रक पहले आया, बाद में फायर हुई उसकी वजह से। हॉरिबल हॉरिबल। सो क्वेश्चन आस्क कि पैसेज में वेयर इज द स्टेटमेंट गिवन व्हिच विल पॉइंट आउट टू अस द फ्लॉ इन दिस स्टेटमेंट। so that is given nowhere but in this underlined part of the last paragraph कि एरिस्टोटल टुक द इफेक्ट फॉर द कॉज, कि जो इफेक्ट था उसको गलती से मिसअंडरस्टैंड कर दिया कॉज। डेफिनेटली इफेक्ट क्या है, फायर ट्रक का किसी जगह पे आना, और आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो कि वो फायर ट्रक कॉज है आग लगने का। तो आंसर बिकम्स पैरा 7। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। प्लीज रेफर टू दैट कॉजल लिंक जो हमने बिल्ड की थी ना सेकेंड पार्ट में, एरिस्टोटल की और ऑथर की, उसको ध्यान से स्टडी करो। इफ दिस क्वेश्चन इज अ बिट कंफ्यूजिंग टू यू, गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन वंस अगेन and then very likely you will understand what's going on. Even if that's not the case, please drop your doubt in the comment section. More than glad to help you. ठीक है, तो चलो अब जाते हैं आखिरी क्वेश्चन के ऊपर में। ऑथर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल्स आर्ग्यूमेंट। भाई क्वेश्चन बनाने वाला तो छोड़ नहीं रहा है पीछा ऑथर और एरिस्टोटल के झगड़े का। तो ऑथर ने जो गालियां मारी है एरिस्टोटल को, वो इन सारे ऑप्शंस में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट, मतलब आपको 3 ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जहां पे देयर इज अ कॉजल लिंक में बहुत बड़ा फ्लॉ, गलत चीज को कारण डिक्लेयर कर दिया है फॉर समथिंग एल्स हैपन। मतलब कि ऑप्शन आपका लेट अस से इट विल से कि बिकॉज ऑफ एक्स वाई हैपेंड, और ये पढ़ने के बाद में थिंक लाइक द ऑथर एंड यू शुड कम टू द कंक्लूजन दैट नहीं ये बहुत गलत बात होगी। ऐसा नहीं होता, रादर एक्स जो है ये खुद एक इफेक्ट हो जाता है। एक्स इज इटसेल्फ द रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स हैपन, या फिर मे बी वाई इज द कॉज एंड एक्स इज द रिजल्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो यू हैव टू फाइंड फॉर अ सिचुएशन लाइक दैट। देर आर गोइंग टू बी 3 सिचुएशंस लाइक दैट एंड यू हैव टू एलिमिनेट। ठीक है, गलत कॉजल लिंक देखते हैं। ऑप्शन डी, कीमोथेरेपी जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। कीमोथेरेपी फैटल है भाई, क्योंकि जो लोग जाते हैं उस ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग तो खत्म ही हो जाते हैं। वो वाओ, ये तो फायर ब्रिगेड टाइप ही पिछले क्वेश्चन जैसा एग्जांपल हो गया ना। वी नो दैट पीपल आर गोइंग टू कीमोथेरेपी टू किल कैंसर, टू फाइट कैंसर, और अगर वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इट्स बिकॉज द रूट कॉजेज द कैंसर। द रूट कॉज इज नॉट कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी इज सपोज टू हेल्प देम लिव, बट ऑप्शन डी सिंह ने कीमोथेरेपी की वजह से मर गया भाई। बहुत गलत, वेरी बैड कॉजल लिंक, बाय बाय, बिकॉज इट इज फॉलिंग इन दिस वाला ग्रुप। ठीक है, वंस अगेन रिफर टू द क्वेश्चन, हमें एक्सेप्ट वाला सीन ढूंढना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑप्शन सी, टैटूज जो लोग बनाते हैं जिसके ऊपर में वायलेंस होता है टैटूज में, उस टैटू की वजह से क्रिमिनल बिहेवियर कॉज होता है। मतलब इफ यू आर समबडी जिसने थोड़ा सा वायलेंट थीम वाला टैटू खुद के हाथ पे बना दिया, तो आप कल जाके क्रिमिनल बन जाओ। वंस अगेन टेकिंग द इफेक्ट फॉर द कॉज, उल्टा है। कॉज ये है कि आप ऑलरेडी एक क्रिमिनल हो, यू ऑलरेडी बिलीव इन वायलेंस, एंड उसका एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज यू ऑफन गो एंड गेट अपने सिमिलर माइंडसेट वाला टैटू ऑन द आर्म, because you are somebody who likes violence, believes in violence, so the tattoo that you get very likely is going to be on the same lines. The tattoo is not causing criminal behavior. The criminal behavior is the root cause of such horrible tattoos. So option C also falls in this category of a flawed causal link. गलत causal link. ऑप्शन बी, वंस अगेन बहुत बढ़िया, कि हमारे ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स, ये ना इसको लिटरली नहीं लेना। ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब डोंट इमेजिन कि ईट की दुकान, ईट की भट्टी, नो, इंग्लिश टर्म है, इट मींस हमारी रेगुलर ओल्ड स्कूल दुकानें। ठीक है, स्मॉल टाउन्स में जो हम देखते हैं ना छोटी मोटी दुकानें रहती है जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जा रही है, देयर विल बी हार्डवेयर शॉप्स, देयर विल बी किराने की दुकान। ओके, दोस दोस प्लेसेस आर कॉल्ड एज ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स।
कि पर्टिकुलरली एक कैटेगरी में एक ओल्ड फैशन बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। और ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स का काइंड ऑफ अपोजिट क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े मॉल्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल, डी मार्ट, दे आर नॉट कॉल्ड एज ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स बिकॉज दे हैव एंड टू एंड सब कुछ, ठीक है। और ऑन दी अदर अगेन ऑन द मोर इवॉल्व साइड ऑफ द कर्व क्या है, ई कॉमर्स कंपनीज, कि जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो बिजनेस, इट इज नो नॉट प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्मेट, इट इज देयर ओनली ऑन योर एप्लीकेशन, आपको डायरेक्ट सामान पहुंच जाएगा, दुकान एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर एंड ई कॉमर्स कंपनी। तो नाउ व्हाट डज ऑप्शन बी से, कि पहले ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स का पॉपुलैरिटी गिरा और उसकी वजह से ई कॉमर्स कंपनीज ऊपर आई। अभी हल्का सा आप इसमें कॉमन सेंस लगाओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, उल्टा हुआ है। रादर ई कॉमर्स कंपनीज ऊपर आई, वो एंड टू एंड सब कुछ आपको प्रोवाइड करने लगी, इसलिए पुराने बिजनेसेस, पुराने ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स का पॉपुलैरिटी गिर गया। तो क्रोनोलॉजी यहाँ पर उल्टी हो गई, टेकिंग द इफेक्ट फॉर द कॉज। ओके, इफेक्ट ये कि फॉल इन पॉपुलैरिटी हुआ है, दे इट इज नॉट द कॉज, बट ऑप्शन बी इज पोर्ट्रेइंग इट एज अ कॉज, मतलब इट फॉल्स इन दिस कैटेगरी, फ्लॉड कॉजल लिंक, हेंस ये आंसर नहीं होगा। आंसर कहाँ बनना चाहिए, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉजल लिंक में फ्लॉ नहीं है, रादर एकदम करेक्ट कॉजेशन दिखाया है। क्या? कि इफेक्ट क्या है, कि रिटेल मार्केट फॉर गोल्ड इन इंडिया इज वेरी हाई। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि इंडियंस को गोल्ड पसंद है, इंडियंस के लिए गोल्ड ऑस्पिशियस है। बहुत सही बात, सही बात है सच में, बिकॉज पीपल ऑलरेडी कंसिडर गोल्ड एज होली ऑस्पिशियस, इसलिए एज अ कॉन्सिक्वेंस रिटेल मार्केट फॉर गोल्ड वेरी हाई इन इंडिया। तो कॉजल लिंक जो है ऑप्शन ए में ठीक है। ऑथर का जो क्रिटिसिज्म था एरिस्टोटल के ऊपर में सब कुछ यही था कि भैया तुम्हारी कॉजल लिंक गलत हो गई है, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द बैक एंड फोर्थ विच इज हैपनिंग एरिस्टोटल ऑथर के बीच में और ऑप्शंस, ठीक है। Nonetheless, if you have any doubts, please drop them in the comment section. More than glad to help you. Thanks a lot for watching. I hope that you enjoyed the passage, felt that it was a good addition to your preparation, to your thought process, gave you a bit of, push जो लगता है दिमाग में, ठीक है। If you like our content, please share, subscribe, comment. Thank you for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.